Assalamualaikum. My name is Shazia and my roll number is EP17704141 and my topic of presentation is major depressive disorder, in which I will cover the antidepressant class, that is SSRI, selective serotonin reuptake inhibitor. First, starting with the what uh, what is major depressive disorder? The feeling of sadness that human experience that is natural. People can be sad when their loved one passes away, or maybe they are going through some challenges, life challenges, or maybe have some kind of illness, but this condition is normal if it is remain for a short period of time. Because if a person experiences these feelings for a long period of time, this condition is not normal, and we can say that a person is suffering from major depressive disorder. It is also called clinical depression, as the disorder have an impact on our mood, behavior, as well as physical functioning that can affect our life. Depressive im- disorder impacts include mood, cognition, behavior. Types of major depressive disorder include seasonal affective disorder, in which seasonal changes occur; psychotic depression, also known as major depressive disorder; postpartum depression can happen a few days or even a month after a childbirth; melancholic depression, loss of pleasure in almost all activities; catatonic depression is a type of depression that causes someone to remain speechless or emotionless for an extended period. Bipolar disorder, called manic depression, is a mental health condition that causes extreme mood swings. Persistent depressive disorder, also called dysthymia, is a continuous long term chronic form of depression in which a person may lose interest in normal daily activities. Now, etiology of major depressive disorder. Causes of major depressive disorder is generally combination of factors like genetic factor, biological factor includes neurotransmitter abnormalities, environmental factor includes stressful life event like death, move, new job, relationship, psychological factor जिसमें negative feelings का आना about self, world और future से related. डायग्नोसिस एंड सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन. डायग्नोज बेसिकली जो डिप्रेशन का है वो उसके सिम्टम पे बेस करता है. जो हमारा हेल्थ प्रोफेशनल्स जो पेशेंट को जो डायग्नोज करते हैं कि इन पेशेंट को मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है या नहीं है, वो उसके सिम्टम की बेसिस पे करते हैं. अगर उसमें कोई सिम्टम्स ऐसे हैं जो कि बहुत टाइम तक रहे हों, मतलब जैसे वो बंदा बहुत ज़्यादा सैड रहता हो, होपलेस हो, बिल्कुल इरिटेट हुआ हुआ हो, उसकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो बिल्कुल जो उसकी नॉर्मल डेली रूटीन से होती हैं वो बिल्कुल एक्टिविटीज़ बिल्कुल डिफरेंट हो रही हों, और उसको उसकी एक्टिविटी बिल्कुल ही लो हो, तो लेकिन वो ये कंडीशंस अगर एक वीक से ज़्यादा अगर उसमें शो हो रही हों, तो जो है हम ये कह सकते हैं कि उस बंदे को डिप्रेशन की कंडीशन हो सकती है या है. तो सिम्टम्स जो हमारे पास चिल्ड्रन में नज़र आते हैं, उसमें हमारे पास सैडनेस, इरिटेबिलिटी, क्लिंजीनेस, रिफ्यूजिंग टू गो टू स्कूल, बीइंग अंडर वेट, और उसके अलावा टीन्स में हमारे पास एंगर, फीलिंग ऑफ नेगेटिव, वर्थलेस, पुअर परफॉर्मेंस होना उनकी, और ईटिंग बहुत ज़्यादा होना, स्लीपिंग टू मच, और उनका सोशल इंटरेस्ट जो है वो भी बहुत कम होना. और एडल्ट्स में जो ज़्यादातर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो ये मेमोरी डिफ़िकल्टीज़, उनमें फ़िज़िकल पेन वगैरह होना, स्लीप से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, सोशलाइजिंग जो उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं वो बहुत कम होती हैं, उनमें सुसाइडल की थिंकिंग भी स्टार्ट होना शुरू हो जाती है. Treatment of major depressive disorder includes psychotherapy. Antidepressant drug includes selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI), serotonin norepinephrine reuptake inhibitors, tricyclic antidepressant, and monoamine oxidase inhibitor. Psychotherapy. Psychotherapy is basically a talk therapy in which person is talking about issue he may go through to the health professional. This therapy is very useful to improve the condition of patient by replacing negative thoughts and habit to a positive one. Now, selective serotonin reuptake inhibitor SSRI. SSRI एंटीडिप्रेसेंट जिसको कॉमनली प्रिस्क्राइब किया जाता है इसलिए क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एंटीडिप्रेसेंट, और ये बहुत ज़्यादा सेफ भी मानी जाती है. मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन of SSRI is basically, as we know, serotonin is a brain chemical that believed to be responsible for mood.
People with a major depressive disorder have a low level of serotonin, and SSRI can relieve symptoms of major depressive disorder by increasing the amount of available serotonin in the brain. Approved SSRI drugs include citalopram, escitalopram, fluoxetine, paroxetine, sertraline, or fluvoxamine. Fluoxetine and citalopram, they have a relatively low incidence of side effects and that most people tolerate well. Uses of SSRI. SSRI may also be used to treat conditions other than depression such as obsessive compulsive disorder, panic disorder, generalized anxiety disorder, post traumatic stress disorder. ड्रग इंटरेक्शन क्या क्या हो सकते हैं इसके? SSRI को जो है अदर मेडिकेशंस के साथ अवॉइड किया जाता है देने से, क्योंकि इसके बहुत सीरियस एडवर्स इफ़ेक्ट्स आते हैं, लाइक डेंजरस रिएक्शंस होना, और इनको मेडिकेशन के साथ इसीलिए हम नहीं देते हैं क्योंकि उसकी वो इफ़ेक्टिवनेस को भी एक तो कम कर देती है और उसके अलावा कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी देती है जब हम SSRI को अदर मेडिकेशन के साथ देते हैं, लाइक और हर्बल सप्लीमेंट्स के साथ भी अगर दें। जैसे अगर हम SSRI को एनसेड्स और लाइक एस्पिरिन और वारफेरिन के साथ दें तो ये ब्लीडिंग की कंडीशन या उसके रिस्क को और ज़्यादा बढ़ा देता है, तो हम अवॉइड करते हैं SSRI को एनसेड्स के साथ देने से। साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ SSRI एंड प्रेगनेंसी में भी हम इसको अवॉइड करते हैं SSRI ड्रग्स देने से, क्योंकि प्रीमेच्योर बर्थ में अकर ड्यू टू SSRI, और इसके अलावा सुसाइडल रिस्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं SSRI अगर ज़्यादा मतलब ड्रग्स जो हैं वो अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर यूज़ की जाएँ तो। और उसके अलावा अदर साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं उसमें हमारे पास हेडेक, ड्रॉजीनेस, इंसोम्निया, हाइपोनाइट्रीमिया, GI डिस्टर्बेंस, सेक्सुअल डिसफंक्शन इंक्लूड होते हैं। नाउ सेरोटोनिन सिंड्रोम बेसिकली एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें SSRI अगर हम किसी अदर एंटी डिप्रेसेंट क्लास ऑफ ड्रग के साथ दें, जैसे मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर या अदर सेरोटोजेनिक ड्रग्स के साथ अगर हम इसको दें तो हमारे पास एक सिंड्रोम कॉज होता है जिसको हम सेरोटोनिन सिंड्रोम कहते हैं, और उसमें हमारे पास जो सिम्टम्स आते हैं वो होते हैं इंक्लूड्स एंजाइटी, हाइपोथीमिया, रिजिडिटी, मसल ट्विचिंग, स्वेटिंग एंड सीजर्स। मैनेजमेंट इसकी ये है कि हम यही करते हैं कि हम इसकी डिसकंटिन्यूशन कर देते हैं सेरोटोनर्जिक एजेंट्स को, और इसके अलावा सेडेशन विद बेंजोडाइजेपिन्स, और या तो हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट लाइक सिप्रोहेप्टेडीन भी दे सकते हैं। इसमें बेसिकली इस सिंड्रोम में जो है वो हमारे पास सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से हमारे पास इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, तो फिर हम सेरोटोनर्जिक एजेंट्स को की जो है वो डिसकंटिन्यूशन कर देते हैं इसको मैनेज करने के लिए। डिसकंटिन्यूशन सिंड्रोम SSRI आर नॉट एडिक्टिव, मतलब ये एडिक्शन कॉज नहीं करता, लेकिन अगर हम इसको जब लेना बंद कर देते हैं तो कुछ सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं पेशेंट्स में, लाइक हेडेक, मेलेस, फ्लू लाइक सिम्टम एंड चेंज इन द स्लीप पैटर्न। इसकी मैनेजमेंट वी हैव, अगर हमारे पास सिम्टम्स माइल्ड हों तो रीएश्योरेंस, या अगर सिम्टम्स हमारे पास सिवियर हों तो हम इसको दोबारा रीइंट्रोड्यूस कर देते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स को विद अ लॉन्गर हाफ लाइफ। नाउ केस स्टडी। 32-year-old man had been diagnosed with a major depressive disorder associated with a stressful internship 5 months before he presented to our clinic. He had been taking citalopram 20 mg per day, flupentazole 0.5 mg per day, and a malitrecin 10 mg per day or more than 3 months. He had recently self-initiated an increase in his dose of citalopram to 40 mg per day due to worsening depressive mood. 2 days later, he suffered from agitation and insomnia. In our clinic, he was alert and complained of insomnia, diaphoresis, subjective fever, tremor, agitation, constipation, and dry mouth. He denied any other substance abuse. Physical examination जब इसकी की गई तो इसमें हमारे पास इसका ब्लड प्रेशर लेवल और हार्ट रेट, इसका टेम्परेचर, इसकी हर चीज़ जो है वो लेबॉरेटरी टेस्टिंग वगैरह जो है, वाइट ब्लड काउंट वो चेक किया गया। देन हीमोग्लोबिन लेवल इसका देखा गया, और सीरम क्रिएटिनिन लेवल भी, और ग्लूटामिक
पायरुविक ट्रांसअमाइनेज और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सब इसकी एग्जामाइन किए गए। असेसमेंट इसकी ये है कि इस पेशेंट को ये पेशेंट बेसिकली जो कॉम्बिनेशन थेरेपी ले रहा था लाइक फ्लूपेंटिजोल, जो कि हमारे पास एक फेनोथायाजीन एंटी साइकोटिक एजेंट है, और मेलिट्रेसिन जो कि एक ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है। इससे पहले हमने यही पढ़ा था कि हमारे पास सेरोटोनिन सिंड्रोम जो होता है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन जब हम एंटी डिप्रेसेंट्स को साथ में देते हैं तो ये होता है। तो बेसिकली इसमें जो इस पेशेंट की जो असेसमेंट हुई है वो यही थी कि इस पेशेंट में कॉम्बिनेशन थेरेपी से इसको सेरोटोनिन सिंड्रोम की कंडीशन नहीं थी, बल्कि ये पेशेंट सिटेलोप्राम की डोज जो डबल करके ले रहा था उसकी वजह से जो इसके सिम्टम्स अपीयर हो रहे थे वो 2 दिनों में, जैसे एजिटेशन, डायफोरेसिस और ट्रेमर्स आना, वो बेसिकली उसके शो कर रहे थे कि इस पेशेंट को सेरोटोनिन सिंड्रोम की कंडीशन है। और उसके अलावा फ़र्दर इसकी जो हम डायग्नोस कंफर्म कर सकते हैं वो उसकी हिस्ट्री और लेबॉरेटरी एग्जामिनेशन से कर सकते हैं। प्लान इसका ये है कि हम सेरोटोनिन सिंड्रोम को मैनेज करने के लिए हम इसकी डिसकंटिन्यूशन कर दें जो हमने सेरोटोनर्जिक एजेंट्स हमने दिए थे या ये जो बंदा ले रहा था, और सपोर्टिव थेरेपी या फिर पॉसिबली यूज़ ऑफ सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट जिस सच एज सिप्रोहेप्टेडीन टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ पेशेंट। सिप्रोहेप्टेडीन हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये हमारे पास एक एंटी हिस्टामिन तो है ड्रग, लेकिन इसको ये बेसिकली एक सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकिंग एक्टिविटी भी इसकी पाई जाती है, जिसकी वजह से ये सेरोटोनिन सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए हम देते हैं, क्योंकि ये सेरोटोनिन के लेवल को जो है वो कम कर देती है उसको ब्लॉक करके। उसके अलावा इस पेशेंट की कंडीशन लाइफस्टाइल चेंज करने से भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और उसकी डाइट जो है प्रॉपर डाइट अगर वो ले तो भी उससे फ़ायदा हो सकता है। थैंक यू।